Hello, my dear students. Today we are going to meet Amog Acharya, who scored 339 out of 400 in CA Foundation June 2023 exams. So, Amog, welcome to Success Mantra Academy and heartiest congratulations for getting such a high score. So, Amog, how you are feeling now after getting 339 out of 400 and what was your individual score? I'm fully satisfied with my marks. It's a dream come true. I had expected 340 marks and I got 339. And I also achieved the subject wise targets. So it's an amazing feeling for me. I got 91 in accounts, 63 in law, 89 in maths and 96 in eco. So yeah, it feels really great. ग्रेट अमोक सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप 12th जैसे ही सीए फाउंडेशन में अबाउ 90 का एम रखो एंड देखो आपके सामने एग्जाम्पल है उसको सच में अबाउ 90 मार्क्स मिल चुके हैं सो अमोक अभी स्टडी स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करते हैं सो सबसे पहले बताओ कि तुम्हारे क्लासेस कब स्टार्ट हुए थे एंड तुम्हारा क्लास का शेड्यूल क्या रहता था एंड सेल्फ स्टडी का शेड्यूल कैसे था मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि अमोग ने 12th के साथ सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था So the CA foundation class started in 11th, the December of 11th. It was only Sunday to Sunday. And during the holidays of 11th, 7 to 10 class था alternate days. और बाकी के alternate days 12th का class था 7 to 10. In the first semester of 12th, I didn't used to study that much. But in the second semester, I used to go to college after class and sit in the library and study for approximately 5 hours for both 12th and foundation. After the 12th exam, my full focus was on foundation. So at that time, I studied for 6 to 7 hours daily. I had kept daily target for each day, and I didn't used to sleep before completing that task. So ma'am had told me to study for 10 to 12 hours, but I only studied for 6 to 7 hours. I felt that it was sufficient. और एक माइंडसेट था कि गिव अप नहीं करना है, वो टारगेट ख़त्म होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए. और मैं एक लिस्ट प्रिपेयर करता था फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर फॉर ईच सब्जेक्ट. तो वो लिस्ट दैट लिस्ट रियली हेल्प मी अ लॉट. I used to get summary of that chapter by just doing that list because it is impossible to do all the questions on the last day of the exam. सो 12th के साथ 5 आवर्स का स्टडी एंड 12th के बाद तुम्हारा 6 to 7 आवर्स का शेड्यूल होता था स्टडीज का एंड उसमें तुमने डेली टारगेट्स जो सेट किए थे वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपको डेली टारगेट सेट करने हैं एंड उतना टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही आपको सोना है एंड एक्चुअली वो अमोग ने एग्जीक्यूट किया है. सो अमोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए अकाउंट्स कैसे पढ़ना है लॉ कैसे पढ़ना है मैथ्स इकोनॉमिक्स सो सब्जेक्ट वाइज तुमने कैसे पढ़ाई की थी वो बताओ. Okay, so for accounts, writing practice is essential. I wrote every question at least 5 to 6 times, and I revised it approximately 20 times before the main exam. So writing practice is essential. Uh, I had prepared a list for each chapter, so that list really helps me. Trust me, it really helps. For law, I prepared a Word file containing all the important case studies because there were so many case studies in which there was some ambiguity. So I prepared that Word file along with answers. So on the last day of the exam, I just read that Word file. So the study of the case study was done. For learning the theory, I used to by heart the sections. I used to underline the main words of each page for law, so that when I read only those words, I can get the summary of that page. So it helped me remember the law. For maths, I just like accounts, I solved each problem 5 to 6 times
and I prepared a list for each chapter containing hard questions. I created my own sign language. The star was for hard questions and the triangle was for doubt. Uh, and for eco, uh, just like law, I used to underline every word, the important words of each page, so that I can get the summary. For the companies of VCK, where you have to do where you have to buy hard the CEOs and CFOs and all. So I practiced remembering it for half hour daily. So on the last day, I didn't need to again revise it. So consistency is the key. ये सो सारे सब्जेक्ट्स के लिए सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमेशा मैं भी ये बताती हूँ कि 5 टाइम्स आपको रिवीजन मिनिमम करनी ही चाहिए एंड अगर आपने 5 टाइम्स रिवीजन की प्लस अकाउंट्स के तो अराउंड 20 टाइम्स उसने ओवरव्यू किए थे क्वेश्चंस एंड 5 to 6 टाइम्स सॉल्व किए थे तो रिजल्ट देखो क्या आ सकता है. सो अगर आपने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया तो यू विल ऑल्सो गेट सच अ गुड स्कोर इन एग्जाम्स. सो अमोक बुक्स कौन कौन से रेफर करने चाहिए सब्जेक्ट वाइज बताओगे कौन कौन से बुक से पढ़ाई करनी है. For accounts, law, and eco, I use the module. I suggest that you stick only to the module, and I practice the MTBs, RTBs, and previous year questions. For maths, I use Taxman and module. The Taxman book is really good. It contains every type of each chapter. It covers all the aspects of each chapter. ओके सो मॉड्यूल से मेन आपको पढ़ना है. मॉड्यूल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड पास्ट आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स. सो वो मई 18 से अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको एक्चुअल में सॉल्व करने हैं. सो अमोक यू हैव जॉइंड सक्सेस मंत्रा टेस्ट सीरीज. सो हाउ द टेस्ट सीरीज हेल्प यू टू गेट कॉन्फिडेंस इन CA एग्जाम्स. So the test series helped me really a lot. I gave all the 4 test series और वो भी alternate days होते थे और CA के एग्जाम भी alternate days. So I got used to that alternate days schedule. Writing practice भी होती थी और it was checked as per ICAI standards. So I got an idea of how much more I need to do for every subject. So it was really a booster for me to prepare for the main exam. यस थैंक यू अमोक. एंड लास्ट अमोक क्वेश्चन कि जो जूनियर्स है तुम्हारे जो अभी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं या आगे जून में 24 में एग्जाम्स देंगे तो उनको तुम क्या गाइड करोगे, क्या सक्सेस मंत्रास दोगे उनको. Okay, first thing is don't be feared to ask questions. मैं बहुत ही सिली क्वेश्चंस पूछता था मैम और सर को. जब तक अंडरस्टैंड नहीं होता तब तक पूछते ही रहना है. ये पॉलिसी रखी थी मैंने. और बाय आस्किंग क्वेश्चंस इट रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. डोंट बाय हार्ट व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड. तो ये था फर्स्ट सक्सेस मंत्र. सेकंड इज एडिक्वेट स्लीप इज़ नेसेसरी. आई यूज टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours डेली. ऐसा नहीं है कि स्लीप कम करनी पड़ेगी या पढ़ाई करने के लिए, ऐसा नहीं है. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता था. रोज़ 1 to 2 hours में टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलता था. तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. 6 to 7 hours इज़ आई थिंक सफिशिएंट. और स्ट्रेस तो सबको आता है, मुझे भी बहुत आता था. तो ब्रेक्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक्स लो. फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, आप फैमिली के साथ बात कर सकते हो. सो इट रियली हेल्प्स यू टू गेट इनटू दैट माइंडसेट टू स्टडी एंड इट रियली मोटिवेट्स यू टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड इफ आई थिंक दैट इफ यू फॉलो ऑल दीज टिप्स यू कैन डेफिनेटली गेट above 300. यस सो थैंक यू अमोक. सो बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया तुमने स्टूडेंट्स को. सो जनरली ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को होते हैं कि अगर स्ट्रेस आ रहा है तो क्या करना चाहिए, हम नींद 7 to 8 hours स्लीप ले सकते हैं क्या या वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. उसके बाद
हम बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं या सिर्फ स्टडीज़ ही करनी पड़ती है. सो ये सब पे तुमने अच्छा गाइडेंस दिया है स्टूडेंट्स को. एंड आईसीआई रैंक्स पब्लिश नहीं करते हैं सीए फाउंडेशन के लिए, बट तुम ऑल इंडिया रैंकर ही हो क्योंकि तुम्हें 339 इतना अच्छा स्कोर आया है. सो थैंक यू अमोक, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स. It will be helpful for them. They will get the strategies how to study. So thank you very much. Bye bye.